ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स 11। तो भागवतम का मैं 11वां श्लोक पढ़ेंगे। भूरिरीनि भूरि कर्माणि श्रोतवयानि विभागश अतः सादोस्त्र यत् सारं समधृता मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भूरिनी मल्टीफेरियस, भूरी मैनी, कर्मानी ड्यूटीज, सर्वतवयानी टू बी लर्नेड, विभागस्य बाय डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अतः देयरफॉर सदो सेज, अत्र हेरिन यत व्हाटएवर, सरम इसेंस, Samudhrata by selection, Manisha to the best of your knowledge, Bruhi please tell us, Bhadra for the good of, Bhutanam the living beings, Yena by which, Atma the self, Suprasidati becomes fully satisfied. Translations. There are many varieties of scriptures and in all of them there are many prescribed duties which can be learned only after many years of study in their various divisions. Therefore, O sage, please select the essence of all these scriptures and explain it for the good of all living beings. There are such instruction, anyone their hearts may be fully satisfied. Atma or self is distinct from matter and material elements. It is spiritual in constitution and thus it is never satisfied by any amount of material planning. All scriptures and spiritual instructions are meant for the satisfaction of the self or Atma. There are many varieties of approaches which are recommended for different types of living beings in different times at different places. Revealed scriptures are innumerable. There are different methods and prescribed duties recommended in these various scriptures. Taking into consideration the fallen condition of the people in general in this age of Kali, the sages of Naimisaranya suggested that Sri Sut Goswami relate the essence of such scriptures because in this age it is not possible for the fallen soul to understand the undergo all the lessons of all these various scriptures in a Varna and Ashram system. The Varna and Ashram society has considered to be the best institution for lifting the human being to the spiritual platform. But due to Kali Yuga, it is not possible to execute the rules and regulations of these institutions. Nor is it possible for the people in general to completely sever relations with their families as the Varna Ashram institution prescribes. The whole atmosphere is surcharged with opposition, and considering this, one can see that spiritual emancipation for the common man in this age is very difficult. The reason the sages represented this matter to Srila Sut Goswami is explained in the following verses. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। तो प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पाठ कर रहे हैं कैंटो 1 के चैप्टर 1 उसका वर्स 11। तो यहाँ पे जितने भी सेजेस हैं नैमिषारण्य में, वो सूत गोस्वामी जी से ये कहते हैं कि आप हमें कृपया करके जो भागवतम है इसका आप हमें इसेंस दो, है ना। मतलब इसेंस मतलब इन द सेंस सार चाहिए, उनको समरी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है कि वो जो सेजेस हैं उनको पता है, वो डेफिनेटली नो डाउट कि उनके पास इतना टाइम भी है कि वो चीजें जो है खुद पढ़ पाएंगे, शास्त्र अलग अलग टाइप के। लेकिन जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो मुनि होते हैं, जो साधु संत लोग होते हैं, वो हमेशा अपने से ज्यादा दूसरे लोगों की परवाह करते हैं। तो वो देखते हैं कि अरे हमने तो चलो कर लिया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जब कलयुग में जो लोग आएंगे जिनकी बुद्धि बहुत कम है, आयु बहुत कम है, दुर्भाग्यशाली लोग हैं, पतित लोग हैं, सारे के सारे सब, तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि एक्चुअली ह्यूमन को एलिवेट करने के लिए, एक लिविंग एंटिटी को एलिवेट करने के लिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेद है ना, तो वेद के अलग अलग पोर्शन, उसके अलग अलग खंड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, ध्यान है, पता नहीं तरह तरह की और चीजें भी है, कितनी सारी चीजें है, उसमें फ्रूटी मेंटेलिटी है। तो एक्चुअली वेद हमें ज्यादातर जो चीज सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं कि मटेरियल चीज कैसे लो, देवी देवताओं की पूजा कर कैसे भौतिक चीजें मांग लो, जैसे अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मतलब अपने इंजॉयमेंट की चीज मांग ली और उसका भोग करो, ये सब चीजें हैं।
तो मटेरियल जो जो वेद वेद का है ना, तो इसकी जो बात है ना फ्लावरी है। मतलब फ्लावरी मतलब क्या? फ्लावरी इन द सेंस की जैसे बातों को सुअर कोटेड करके दिया गया। बात तो है बेकार ही, लेकिन उसमें सुअर लगा के दिया गया है। मीठा, मीठे के साथ चीज दी जा रही है। अच्छा, मीठे के साथ कोई चीज अगर दी जाए तो तीखा तो लगेगा। अब जैसे करेला है, करेला होता है कड़वा, लेकिन उसके साथ अगर कुछ मीठा स्वीट लगा के दे आपको, जैसे गुलाब जामुन के साथ अगर ये करेला दे, तो जब खाएंगे तो टेस्ट कैसा आएगा, उसका स्वाद कैसा आएगा? टेस्ट आएगा मीठा और कड़वा दोनों आएगा। अब उसमें ये वैसी बात होगी कि हमने खीर बनाई और खीर के अंदर मिट्टी डाल दी, खीर का टेस्ट तो आएगा, लेकिन कच कच जो आएगा वो मिट्टी या बालू उसकी तो आएगी कचकचाहट, तो वो बेकार है। ठीक इसी तरीके से वेद का भी है ये, उसमें बहुत सारी चीजें दे रखे, लेकिन बिना गाइडेंस अगर हम करेंगे, और ज्यादातर फ्लावरी चीजें इसमें दे रखे कि कैसे भोग करना है, पुण्य करो फिर स्वर्ग जाओ, वहां पे भोग करो, एंजॉय करो, मस्ती करो, दोबारा फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर वही करो, ग्रेजुअल करते रहो, कर्म कांड करते रहो, जितना हो सके सारे कर्म कांड कर डालो। वेदों में इतने सारे कर्म कांड सब कर डालो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को मांस वास खाना है तो भाई कोई नहीं, काली काली माँ की पूजा करो, बलि दो बकरे की, काटो उनको भोग लगाओ और खुद खा लो, है ना। किसी को शराब मदिरा अगर पीना है तो देवी की उपासना करो, उनको चढ़ाओ और उनके नाम पे खुद ले लो। ये सब चीज दे रखा है। तो कोई ये कह सकता है जरूर कि तो ऐसा क्यों फिर भगवान ने उनको मतलब ऐसे रूल रेगुलेशन मतलब इस तरीके से क्यों कहा शास्त्रों के अंदर, वेदों में मना कर देना चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ऐसा इसलिए कहा जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंद मचा रहा है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, बहुत बेकार कर दिया सिस्टम उसमें, तो थोड़ा रूल रेगुलेशन लाने के लिए, जीवन में थोड़ा डिसिप्लिन लाने के लिए कि एक लेवल है कि इससे ज्यादा तो कम से कम नहीं करेगा ना मिसयूज, एक हम रूल रेगुलेशन डालते हैं। शास्त्र रूल रेगुलेशन देते, मान लो किसी को मांसाहार करना भी है तो पूरा रूल नियम लेके आते हैं कि उन नियम को पालन करने में थोड़ा बंदा उलझे, और उलझ उलझ के जैसे भी खाएगा तो उसको बाद में फिर से तो बोले इतना नियम का पालन करना पड़ रहा है मेरे को, ये सारी चीजें करनी पड़े, बड़ा दिक्कत हो रहा है। फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट करते करते फिर बंदा इग्नोरेंस से फिर आएगा पैशन में आएगा, फिर धीरे धीरे गुडनेस में आएगा। इस तरीके से करते करते फिर उस व्यक्ति को आगे लेके जा सकता है। ये इसलिए शास्त्र है। तो वेदों में ज्यादातर इस तरीके की बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कैदी एक जेल में है, तो जेल का जो गेट है, मान लीजिए गेट नंबर 10 में है, और अगला कैदी बोल रहा है दूसरे कैदी को कि देखो भाई मैं गेट नंबर 2 में जा रहा हूँ। क्यों भाई? वहां मस्त है यार, वहां पे बिल्कुल मस्त फैसिलिटी है, टीवी है, पंखा है, पैर दबाने के लिए नौकर चाकर, कोई टेंशन नहीं, खाने पीने की व्यवस्था है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मजा मस्ती करेंगे वहां। तो क्या वो कैदी सही बोल रहा है? कैदी बेवकूफ वाली बात कर रहा है। जहां तो बंदा जेल में रहा है, देखा जाए रियलिटी और क्या चीज, जहां तो जेल में रहा मतलब रूम तो चेंज हो रहा है, सिर्फ 10 नंबर से 2 नंबर में जा रहा है। इससे बड़े उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे को निकलो यहाँ से, कहां से ना, मैं जेल से निकलूं कैसे, परमानेंट कैसे निकलूं। लेकिन वो तो जेल में रहने का अपने इंतजाम करके बैठा हुआ, गेट नंबर 10 से 2 में जाएगा, फिर और फैसिलिटीज को हाई मिलेगी उसमें जाएगा, तो है तो जेल ही में, लेकिन है ना। तो ठीक उसी तरीके से इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर भी चीजें हैं, भौतिक संसार में चीजें हैं। क्या हम अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की चीजें एकत्रित कर लेते हैं, कहते हैं इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो मस्ती इंजॉय एक्चुअली हम नहीं कर रहे हैं, माया हमारे साथ इंजॉय कर रही है। रियलिटी अगर देखा जाए, अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए, एक फिलोसफिकल अगर एंगल से देखा जाए, तो ये डेफिनेटली हमारे साथ ही गलत हो रहा है, कुछ हमारे साथ सही नहीं हो रहा। मान लीजिए कोई व्यक्ति सेक्स करता है तो उसको लगता है बड़ा मुझे मजा आ रहा है, बड़ा मुझे मजा आ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जानता नहीं एक एक वीर्य की बूंद को बनने में ना, एक एक शुक्राणु की बूंद को बनने में ना 60 मतलब 60 खून की बूंदे एक शुक्राणु की बूंद के बराबर होता है। तो सोच लो मजे मस्ती के लिए हम ऐसे कर रहे हैं और कह रहे बड़ा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो ये बेवकूफी है। जैसे एक ऊंट है, ठीक है, और ऊंट के शरीर पे कट आ गया और उसके ब्लड निकल रहा है उसके शरीर से, लेकिन ऊंट भाई खा पी रहा है, जो दूध अपना मतलब सॉरी जो खून है ब्लड को टेस्ट कर रहा है, जीभ से चाट रहा है, उसे कह रहा वाह वाह कितना मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है? उसके शरीर का ही वो खून पी रहा है बेवकूफ इंसान, है ना, कि उसके शरीर में कट आ गया, वहां से ब्लड निकल रहा है, इंस्टेड ऑफ ही शुड ट्रीट हिज बॉडी परफेक्टली, है ना, उसको अपने शरीर का उपचार करना चाहिए, वो ना करके वो टेस्ट में लगा पड़ा है ना, इस तरीके से। अब मान लीजिए एक ब्लेड है, ब्लेड पे हमने शहद डाल दिया, शहद, और मैंने बोला खाओ, चाटो शहद को, मजा तो आएगा, चाटेगा, बोलेगा वाह मजा आया, लेकिन जैसे चाटेगा फिर उसको ये भी लगेगा ओह ओह कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ब्लेड के एज पे ब्लेड के कोने पे शहद डाला है हमने, शहद चाट तो रहा है लेकिन साथ में उसका जीभ भी कट रहा है ना। इसी तरीके से भौतिक संसार का भी नियम चलता है। हमें लगता है हम मस्ती करेंगे, हम मजा मस्ती करेंगे, चीजें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन असलियत क्या होती है? हम कुछ नहीं कर रहे होते, वो कर करके हम बिल्कुल थका रहे होते हैं अपने आप को, शरीर को खत्म कर रहे होते हैं, आत्मा को खत्म कर रहे होते हैं,
इस मनुष्य जीवन को खत्म कर रहे होते हैं। एक्चुअली में इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? इस मनुष्य जीवन को खत्म कर रहे होते हैं और कुछ नहीं है। हाँ, बाकी जितने भी योनि में हमें जो करना था भोग विलास कर लिया, लेकिन इस मनुष्य जीवन में अगर हम सेम अगर वही एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, लॉस ही लॉस है। एक्चुअली देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम टू अस। तो ये सब चीजें बताया गया है ना। तो जो पहले के जितने भी मतलब जो हमारे शास्त्र अगर देखें, वेद उपनिषद पुराण है ना, इतिहास, इसमें बहुत सारी चीजें है ना। और इसमें हर चीज के लिए अलग अलग चीजें बताया गई है कि आप ये करोगे तो आप ये मिल जाएगा, आपको संतान चाहिए तो इनकी पूजा करो, आपको अच्छी लड़की चाहिए तो शिव जी की पूजा करो, मतलब अच्छी अगर वाइफ चाहिए तो शिव जी की पूजा करो, है ना। इस तरीके से अगर कोई करेगा हो जाएगा भाई, ठीक है। तो लेकिन शास्त्र जो है हमारे, उसके अंदर इतनी सारी चीजें रखी है कि आदमी पढ़ के भी विलड हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। तभी तुम देखते हैं तथाकथित जो आजकल साधु पाखंडी जो बाबा बाबा घूमते रहते हैं और बेवकूफ पागलों वाली बातें करते हैं, हरकतें करते हैं पागलों वाली, अरे ईश्वरी निराकार है बच्चा, ये वो बच्चा। रियलिटी देखा जाए तो वेदों ने उसको बच्चा बना दिया। क्यों बना दिया है? ये वेद तो पढ़ते हैं लेकिन वेद का जो इसेंस है वो इनको नहीं पता है। क्यों नहीं पता? ड्यू टू पुअर फंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी है। आप कोई कह सकता है अरे क्या बात कर रहे हो यार, ज्ञान की कैसे कमी हो सकती है? वेद पढ़ने वाले लोगों को तो बहुत ज्ञान होता है। ठीक है, ज्ञान होता है, लेकिन कलयुग के लिए वेद है ही नहीं। पहली बात तो वेद पढ़ने के लिए कम से कम हमें 40 साल लगाने पड़ेंगे। वेद कलयुग के लिए है ही नहीं। इसीलिए वेद का जो बिल्कुल जितने शास्त्रों का सारा कंडेंस जो चीज हमें मिला है कलयुग में क्या है? भगवत गीता, श्रीमद भागवतम, और क्या है? श्रीमद भगवत गीता यथारूप और श्रीमद भागवतम, यही तो है, 2 ग्रंथ है बस, और कुछ नहीं है। कहा जाता है किसी ने श्रीमद भागवतम अगर पढ़ लिया अच्छे से, उसकी सारी फिलोसफी क्लियर हो जाएगी। नहीं तो बाकी ये चीज अगर हम करेंगे तो हमें डाउट आएंगे, डाउट आएंगे, डाउट आएंगे। और ये लोग अपने गुरु के मार्गदर्शन में भी नहीं पढ़ते। जो वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़ने के लिए पहली बात तो व्यक्ति को ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए, ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए, उसको व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में होना चाहिए। कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं वो पालन करना होता है, वैष्णव सदाचार के नियमों का पालन करना होता है। तो कलयुग में देखा जाए तो लिटरली शायद ही कोई लोग ऐसा कर पाए, इम्पॉसिबल एक तरह का देखा जाए अगर तो इस तरीके का कर्मकांड लोगों से फंसने का कोई लाभ तो है नहीं। एक्चुअली वो करके हम एक्चुअली फंस उल्टा हो जाएंगे, क्योंकि वे जब पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं मंत्रों का ना, वेदों का या बाकी जितने भी ग्रंथ है, तो इनके कुछ अपने स्ट्रिक्ट कुछ कोड्स होते हैं, है ना, कुछ नियम होते हैं। जहां नियम का उल्लंघन होता है हमें उसकी सजा मिलती है, हमें पता हो चाहे ना पता हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि कोई है इलेक्ट्रिक इंजीनियर, भाई इलेक्ट्रिक में बहुत बढ़िया, बिजली का काम बहुत ज्यादा जानता है। उसने बिजली का जो डब्बा है पावर सॉकेट, उसके अंदर हाथ डाल दिया, कह रहा मैंने 20 साल से बिजली बनाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा। तो उसे कुछ नहीं होगा, वो मरेगा। क्यों? बिजली को ये थोड़ा पता तुम कितने साल से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बिजली का स्वभाव क्या है? करंट देना। ऐसी किसी वस्तु कॉन्टेक्ट में कोई व्यक्ति अगर आएगा, बिजली का क्या काम है कि कोई भी अगर निर्जीव सजीव वस्तु उसके कॉन्टेक्ट में आएगी उसको करंट देगा ही, और क्या होगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो शास्त्र में भी इसी तरीके से कि अगर हम गुरु के निर्देशन में नहीं पढ़ेंगे, गुरु परंपरा के माध्यम से अगर चीज नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमें नुकसान ही नुकसान है। कौन कहता फायदा होगा? तो इसलिए देखते हैं। और ये फिर तथाकथित जो लोग होते हैं एक्चुअली चाहते भी है कि हम एक दिन हम भी गुरु बनेंगे, वी विल ऑल्सो बिकम अ गुरु, क्योंकि गुरु 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 भोगी बनते हैं। ये गुरु के संस्थान में पैर टांग पसार के बैठ जाते हैं, गुरु 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 चलता है। और कुछ संस्थान है जिनका नाम मैं नहीं लूंगा कैमरे के सामने, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी तो थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। इसलिए कुछ लोग होते हैं कि जब जाके उनके देखेंगे ना तो कहेंगे भाई तुम्हारे गुरु का है, तो गुरु की बहुत बड़ा मूर्ति बना के रखा होगा और गुरु 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 बस गुरु की पूजा चल लोगे। अब मतलब भगवान का है भाई? भगवान क्या? भगवान नहीं होता भाई। भगवान देखो पता नहीं कहाँ छोटे से कैलेंडर में भगवान। तो पागलपंथी की हदें हैं, सारी पार कर देते हैं लोग। क्यों करते हैं? कि कलयुग में इस तरीके के लोग हमें मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कलयुग में सारे लोग ऐसे होंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, संख्या बहुत ज्यादा है, ये जरूर कह सकते हैं कि संख्या बहुत ज्यादा है, देयर आर पॉपुलेशन आर वेरी मच, बट सौभाग्य हमारा ये है कि हम इस कलयुग में आए हैं कि जहां पे भक्ति का जो आंदोलन है बहुत तेजी से चल रहा है, इट्स वेरी फास्ट, है ना। तो अगर हम इसका लाभ उठाना चाहें, अगर हम चाहते हैं कि हम इसका लाभ मिल जाए तो डेफिनेटली हम उठा भी सकते हैं। कोई इसमें मतलब ऐसी बात नहीं है कि नहीं उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्वर्णिम युग चल रहा है, कलयुग का स्वर्ण युग चल रहा है। तो ये 10,000 साल तक चलने वाला है। तो जो जो आके बहती गंगा में अपना हाथ धो ले, हाथ साफ हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आइए भक्ति कीजिए, दैट्स ऑल। क्योंकि भक्ति में कुछ स्ट्रिक्ट नियम दे रखे हैं हमें, एज इट इज जो बोला जा रहा है गुरु के माध्यम से, एक गुरु परंपरा के अंतर्गत, एक प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत जो चीज हमें कही जा रही है, आप करो ये मत करो, ये करो और वो मत करो, जो कहा जाए एक्चुअली एग्जैक्टली इफ यू डू दैट देन डेफिनेटली इट विल बी
बेनिफिशियल फॉर अस। तो जो जो कहा जा रहा है वो एजिटी अगर फॉलो करेंगे, एजिटीज का नियमों का पालन करेंगे, तो ये 100% श्योरिटी है कि एट द एंड ऑफ लाइफ वी हैव अ रिमेम्बरेंस ऑफ नारायणा, लॉर्ड कृष्णा। ये पक्का निश्चित है। आप इसको मत सोचिए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं है भाई, झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो एक यहाँ पे श्लोक में एक टर्म आया वर्ण आश्रम, वन प्लस आश्रम। ये टर्म क्यों आया? क्योंकि कहा जाता है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो मानव समाज है, उसको अगर हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से अगर चलाए ना, उनके लिए दो चीजों की बहुत आवश्यकता है, वर्ण आश्रम। अगर वर्ण आश्रम किसी सोसाइटी के अंदर अगर स्टैब्लिश हो गया, वो भी दैवीय वर्ण आश्रम, आश्रय वर्ण आश्रम की बात नहीं कर रहा मैं, दैवीय वर्ण आश्रम अगर हो गया स्टैब्लिश, वो भी वैदिक वैदिक पद्धति के अनुसार, एंशियंट जो एजुकेशन पॉलिसी के उसके अंतर्गत अगर चीजें हो गई, डेफिनेटली ये हमारे फेवरेबल है भक्ति के। क्यों है? क्योंकि वर्णाश्रम के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी वर्ण है आश्रम में, जितने सोसाइटी के लोग हैं, हर व्यक्ति को अपना अपना काम पता है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कोई व्यक्ति किसी के अंदर किसी के भी काम में हस्तक्षेप नहीं डालेगा, कोई व्यक्ति किसी और का काम नहीं करेगा, जिसका जो काम है स्वभाव के अनुसार वो व्यक्ति करेगा। जन्म के आधार पर नहीं होता काम, ये उसके कर्म और गुण के आधार पर उसकी वर्ण और आश्रम डिसाइडेड होगा। इस केस में क्या होगा कि व्यक्ति जो है, कहा जाता है कि व्यक्ति अगर अपने स्वभाव के अनुसार किसी भी काम को करता है, तो क्या होगा, वो जो भक्ति भी करेगा तो उसमें वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग है, किसी ने पास्ट लाइफ की कंडीशनिंग हो रखी है ना किसी तरीके से कर रहे हैं एक्चुअली, उसी के चक्कर में लफड़ा क्या होता है, उसी के चक्कर में हम भुगतते हैं कि हम कहते हैं यार इस जीवन बड़ा कष्ट आ रहा है, ये जीवन बड़ा कष्टदायक है, बहुत कष्ट हो रहा है जीवन में, क्या करें बचने के लिए? भाई कुछ मत करो, कुछ मत करो। जो अपने जो काम है उस काम को अच्छे से करो, जो तुम्हारे जो काम कर्तव्य दिया गया उसको अच्छे से करो, लेकिन इसके साथ भक्ति इतने अच्छे से करो कि वो कर्तव्य उसके सामने कुछ ना रहे। अगर भक्ति कोई बढ़िया से करेगा तो कर्तव्य अपने आप ही होगा। जैसे मान लीजिए कहा जाता है किसी, मान लीजिए अगर हमें भूख लगी, शरीर के सारे अंगों में दर्द हो रहा है, भाई क्या करें, शरीर थका हुआ है, तो जैसे हमने खाना पेट में डालेंगे तो सारी एनर्जी पूरे शरीर में जाएगी, अपने आप ही सारा शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, दिमाग चलने लगेगा, हाथ पैर उठने लगेंगे, है ना, हम मुंह से शब्द बोलने लगेंगे। ये कैसे होगा? ये एक्चुअली क्या होगा, पेट में खाना डाला ऑटोमेटिक चीज ठीक हो गए। ठीक उसे अगर भक्ति अगर हम करते हैं, अगर हमारे लाइफ के सेंटर में भगवान कृष्ण होते हैं, अगर होते हैं, भक्ति सेंटर में होती है, तो उसके साथ जितनी भी चीजें है ना, जितनी भी चीजें हैं, तो वो चीजें भी बढ़िया हो जाएगी, है ना। तो वो चीजें भी ऑटोमेटिक हम अच्छे से करने लगेंगे अगर भक्ति हमारी अच्छी होगी तो। लेकिन अगर भक्ति का खराब होगी, भगवान नहीं होंगे लाइफ में, अध्यात्म नहीं होगा हमारे जीवन में, तो क्या होगा? यही चीज बेकार है, टाइम वेस्ट करेंगे हमारा, फिर हम फ्रस्ट्रेट होंगे छोटी छोटी में। कहा जाता है जैसे हमारे मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री अगर धर्म के अनुसार चलता है, जैसे आज के टाइम में श्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, वो धर्म के अनुसार चलते हैं, जीवन को अपना व्यतीत करते हैं, और वो सनातन धर्म का प्रचार करने में हमेशा लगे रहते हैं। क्यों? सनातन धर्म कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, वो धर्म नहीं है। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब क्या होता है? वो धर्म है जो जिसका ना आदि है ना अंत है, पता ही नहीं है कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि ज्ञान ये स्पॉटलेस है, इसमें खराबी नहीं आती कभी भी, इसमें रुकावट नहीं आती कभी भी, क्योंकि भगवान के द्वारा ज्ञान मिलता है, गुरु परंपरा के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है। इसके अंदर रंच मात्र भी कोई कमी खराबी आ ही नहीं सकती। तो इसलिए हम देखते हैं नरेंद्र मोदी इतने बढ़िया प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले अभी आज के टाइम पे, तो वो कितना सारा हमारे देश के लिए कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। राम मंदिर का उद्घाटन अभी 22 जनवरी को होने वाला है, तो उनके राज्य में काफी चीज हो रही। इससे पहले कांग्रेस थी, क्या किया इन्होंने? घूसखोरी और पता नहीं लूट मार पीट, लोगों का शोषण, पता नहीं क्या बलात्कार, क्या क्या चीजें कर डाला लोगों ने। तो अगर ऐसी गवर्नमेंट होगी तो क्या होगा? सोसाइटी का नाश होगा। लेकिन अच्छी सरकार अभी आ गई है, सोसाइटी अच्छी चल रही है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगर लीडर अगर सोसाइटी का अच्छा है, तो सारी प्रजा भी धर्म के, अगर सोसाइटी का जो राजा है अगर धर्म के अनुसार जीवन जिएगा, तो सोसाइटी की जो प्रजा है, जो ऑडियंस है, जो जनता है, वो भी अपने जीवन को धर्म के अनुसार जिएगी। ये तो 100% ये बात सही है, तो सही है ही। तो जैसे पृथ्वी महाराज का जो केस हम देखते हैं कि धर्म के अनुसार जीवन जीते थे, वो पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, इसीलिए जितनी प्रजा थी उनकी आदर करती थी, उनको अपना पिता मानते थे। अगर पिता सही होगा तो पुत्र अपने आप ही सही होगा ही होगा, है ना। बस बात ये होती है कि हम संस्कार अपने आप को अच्छे रखें, धर्म के अनुसार अगर हम चलेंगे तो फायदा होगा। वर्णाश्रम हमारे भक्ति के बहुत फेवरेबल है, क्योंकि पहले के टाइम पे भी लोगों ने वर्णाश्रम फॉलो कर करके एलिवेट हो के भगवान के पास पहुंच चुके हैं। क्योंकि अगर हम करेंगे, सोसाइटी बिल्कुल मिसबिहेव, जो सोसाइटी में चीजें हो रही है वो नहीं होगी,
बिल्कुल रेगुलेट में सोसाइटी चलेगी, डिसिप्लिन में, रूल रेगुलेशन के अंदर सोसाइटी चलेगी, तो कोई लॉस नहीं होगा हमारा, और हम मन को शांत करते हुए भक्ति कर पाएंगे। एक्चुअली एक कहावत भी है कि जब तक हमारा मन शांत नहीं होता ना, तो हो सकता है ब्रह्मांड के हम राजा बन गए, हो सकता है इस ब्रह्मांड के सबसे अमीर आदमी हम बन गए, लेकिन अगर मन शांत नहीं है ना, तो ये मन हमें सुसाइड करा देगी। इसलिए देखते हैं बड़े बड़े जो हीरो होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, बड़े बड़े अमीर बाप के जो बच्चे होते हैं, वो इतना धन कमाते हैं, इतना धन कमाते हैं कि धन उनके मन पे, शरीर पे हावी हो जाता है। फिर एट द एंड ऑफ द डे वो लाइफ क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज उनके दिमाग में बैठ गया, मन ही शांत नहीं हुआ उनका। हाँ, हम ये नहीं कहते आपको पैसे नहीं कमाने, पैसे कमाने हैं, चीजें हैं, लेकिन उतना ही करना जितना हमारे लिए जरूरत है, जितना जिससे जीवन चल जाए। लेकिन अल्टीमेटली हमें उस चीज के लिए ज्यादा मेहनत करना है जो ये शरीर छूटने के बाद भी हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे। उस चीज पर समय हमें देना है, लेकिन कम देना है, या तो उतना देना है जिससे हमारा बस गुजर बसर चल सके। और मतलब जरूरी नहीं है आप ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने का, एफर्ट मारने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज ओनली लॉस, तो कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो ये हमें समझने का प्रयास करना होगा। और हमें एक और चीज साथ में देखना होगा, दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर, कि मेहनत तो करनी है, लेकिन साथ में हमें अपना एटीट्यूड सही रखना है, हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कि अगर जीवन में अगर कुछ विकट भी हमारे साथ तो कुछ गलत भी हो गया, तो एटीट्यूड ऐसा रखना है कि भक्त का जो स्वभाव है, एटीट्यूड है ना, उसे एक भक्त पहचाना जाता है। कि जीवन में मान लो बहुत कष्ट आ गए, बहुत विपत्ति आ गई, लेकिन भक्त ने अपना एटीट्यूड नहीं बदला। मतलब मान लो परिवार में बेकार चीज हो रही है, बिल्कुल बकवास, लेकिन भक्त का एटीट्यूड एक ही यही है कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। तो एक दिन वो व्यक्ति जरूर आगे बढ़ेगा, है ना। एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यही एटीट्यूड हम देखते हैं हमारे जो षट गोस्वामी है वृंदावन के, जो 6 गोस्वामी है उनके केस में देखते हैं, है ना। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, ये बड़े बड़े मतलब मंडलपति, है ना। तो इनको तुच्छ लगा। क्या तुच्छ लगा? क्योंकि तो बड़े बड़े मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, राजा नवाब हुसैन शाह के अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका चीजें मैनेज करते थे, ब्यूरोक्रेट थे, अच्छे मतलब सोसाइटी के एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के साथ उठना बैठना हुआ करता था। लेकिन इन्होंने फिर भगवान की सेवा के लिए सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि तुच्छ लगा। क्या तुच्छ लगा? मंडलपति उन्हें कहा जाता है जो बड़े बड़े जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, जमीन होते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं, मंडलपति उन्हें कहा था, बहुत रिचेस्ट लोग होते हैं। लेकिन इनको तुच्छ लगा, इसलिए हम कहते हैं, हमारे फिर इसमें भी आता है, वंदे रूप सनातना भट युगो श्री जीव गोपाल को, नाना शास्त्र विचार रे तु कह कम श्री जीव गोपाल को, है ना। ये सब चीजें हमारे सोसाइटी देखने को मिलते हैं। और दूसरा जो शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, वो है विल पावर, आत्मविश्वास, है ना। अपने आप पे पूर्ण से विश्वास होना चाहिए व्यक्ति को। तो हम सोसाइटी में देखते हैं वही व्यक्ति, अगर मान लीजिए आपके अंदर कुछ अगर गुण है भी नहीं, मान लीजिए आपकी गंदी आदतें हैं, आपका एटीट्यूड खराब है, आपका नेचर खराब है, गंदे गंदे बातें करते हो, गंदे लोगों के साथ संगत रहते हो, आप गलत लोगों के साथ रहते हो, मांस मछली मित्रा इन सबका सेवन करते हो, लेकिन एक चीज आपको जरूर सुधार सकता है, विल पावर। अगर विल पावर सही, आपका आत्मविश्वास सही है, अपने फेथ है कि मैं एक दिन सुधरूंगा, मैं एक दिन सुधरूंगा, मैं अपने को बदलूंगा बदलूंगा बदलूंगा, एक दिन जरूर आएगा जब उस दिन अपने आप को जरूर बदल दोगे। हो सकता है समय लग जाए, क्योंकि पास्ट कर्मा है, पास्ट लाइफ की पता नहीं कितनी सारी चीजें बुरी आदतें हमारे अंदर इंटेंगल हो रखी है। तो वो अगर हमें बदलना है, अगर वो हमें चेंज करना है, इसके लिए तो भाई हमें बस वही करना पड़ेगा। डेफिनेटली फिर हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा और आदतें छूटेगी, और आदत छूट जाएगी तो व्यक्ति की गाड़ी तुम्हारी ऑटोमेटिक आगे बढ़नी है। सो Kaliyuga is not possible to execute the rules and regulations of these institutions, or nor it is possible for the people in general to completely sever relations with their family as the Varnashram institution prescribe. तो कलयुग में रूल रेगुलेशन का पालन करना बहुत इम्पॉसिबल टास्क लगता है, और ये पॉसिबल भी नहीं लगता कि लोग वर्णाश्रम को अपने लाइफ में अपना के अपने जीवन को सही तरीके से जी लें। दिस इज नॉट एप्लीकेबल और प्रैक्टिकल लगता है लोगों को, लेकिन अगर हम लेके आएंगे लाइफ में तो डेफिनेटली हमें इसका लाभ तो होना है। सो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो जो होगा उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। So, and considering this, one can see the spiritual emancipation for the common man in this age is very difficult. The reason the sages presented this matter to Sri Sud Goswami is explained in the following verses. हाँ, लोगों के लिए बहुत टफ है चीजें करना, रूल रेगुलेशन पालन करना, लेकिन अगर एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंतर्गत हम करेंगे चीजें, एक पारंपरिक गुरु के अंतर्गत हम चीजें करेंगे ना, डेफिनेटली फिर हम तो रूल रेगुलेशन का पालन करेंगे, नियम जरूर पालन होंगे। नियम में फंसना नहीं है, लेकिन नियम जितना हमारे चाहिए उतना तो लेना ही पड़ेगा ना। नियम क्या? प्रैक्टिकल नियम है, चार नियमों का पालन करना, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। 16 माला का जप करना है हमको प्रतिदिन, सुबह सुबह प्रातः काल उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है,
इसके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा, जो लोग सूर्य देव के बाद उठते हैं ना, शास्त्र में लिखा हुआ है जो लोग सूर्य देव के बाद उठते हैं ना, वो सारे पाप भी अपने अंदर ले लेते हैं जो उन्होंने नहीं किया होता। मतलब गौ हत्या का पाप, अवैध संघ का पाप, मांस का पाप, मदिरा का पाप, मादक पदार्थों लेने का पाप उन्होंने किया नहीं, फिर भी ले लेते। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि सूर्य की अपनी एक देवता है, इष्ट देव अपनी आइडेंटिटी है ना। तो अगर उनको हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे चीजों को ना, तो हमें अपने आप ही पाप मिल जाएगा। इसलिए सुबह उठना चाहिए। साधना में जितने हमारी हो सके सुबह ही जितने जल्दी कंप्लीट कर देना चाहिए। उसका हमारा जो काम है वो करेंगे तो डेफिनेटली में उसका लाभ होगा ही। और इस तरीके से हम लाइफ को अपने रेगुलेट कर पाएंगे, डिसिप्लिन कर पाएंगे, तो आदतें सुधरेगी, एसोसिएशन ठीक रहेगा, तो बाकी चीज हो रहेगा ना। तो प्रतिदिन एवरीडे हमें अपना बेस्ट एफर्ट देना है ना। बेस्ट एफर्ट देंगे तो आप ये वादा करते हैं यू विल गिव योर बेस्ट एफर्ट, देन इट विल डेफिनेटली ग्रोथ इन स्पिरिचुअल लाइफ। हरे कृष्ण शिल प्रपाद की जय।